خوش آمدید لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں اے دل ہے مشکل کا ایپیسوڈ نمبر 4 شروع کرنے جا رہی ہوں۔ جانتی ہوں بہت انتظار کرا دیا ہے، اس لیے اب بالکل بھی ویٹ نہیں کریں گے اور جلدی سے شروع کریں گے۔ فقط پاکیزہ جذبوں کی پرخ ہوگی سرے محشر، گنے گا کون سجدوں کو، وضو پر کون جائے گا۔ تاجور کی ہاں کے بعد جلد ہی نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ زیادہ لوگ نہیں، بس قریبی رشتہ دار ہی انوائٹڈ تھے۔ آج بدھ تھا اور اگلے جمعے کے مبارک دن نکاح کی سنت پوری ہونی تھی اور پھر رخصتی کچھ مہینوں بعد طے کی گئی تھی۔ ابتسام تو بہت خوش تھا، اس کے دل کی مراد بر آئی تھی۔ سب لوگ خانزادہ ولا کے سٹنگ روم میں بیٹھے نکاح کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے اور تاجور ابتسام کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی اور شہرام پاس بیٹھا ابتسام کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بس کر جا بھائی، اس کو آنکھوں سے ہی کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ شہرام نے کونی ماری تھی۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ خود تو روز رات کو ملنے چلا جاتا ہے، میرے دیکھنے سے تجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ ابتسام چڑھ کر بولا، ایک تو بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اوپر سے یہ ٹانگ اڑا رہا تھا۔ تو میرے ہی سامنے میری بہن کو دیکھ رہا ہے تو تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں چاہوں تو انکار کر سکتا ہوں، میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ شہرام نے روب جھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ جا بھائی، پہلے اپنی والی تو منا لے، پھر بات کرنا۔ اپنا گھر سنبھلتا نہیں ہے اور دوسروں کا توڑنے چلے ہیں۔ ابتسام نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ میرا بھی دن آئے گا، شہرام کہتا ہوا منہ پھیر گیا۔ تاجور بیٹا، آپ بھی کچھ بولو نا، آپ تو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہو۔ یہ تھے زیدی خانزادہ، سوبر سی پرسنالٹی۔ شہرام انہی کی کاربن کاپی تھا، شکل میں بھی اور انداز میں بھی۔ میں کیا بولوں انکل، آپ کو جو مناسب لگے وہ کر لیں، تاجور آہستہ سی آواز میں بولی تھی۔ ارے بچے، آپ کا نکاح ہے، آپ اپنی مرضی سے جو چاہتی ہیں ہمیں بتا دیں۔ خانزادہ صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں انکل، جیسی آپ کی مرضی، آپ میرے باپ جیسے ہیں، جو آپ کو ٹھیک لگے، تاجور نم آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ خانزادہ صاحب نے مسکرا کر اس کے سر کو تھپکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ابتسام مسکرا دیا۔ بلا شبہ تاجور ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اس کی زندگی جنت بنا سکتی تھی۔ سین چینج۔ صبح صبح ہی تینوں چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، فائزہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ اس ٹائم تک شایان بھی آ چکا ہوتا تھا، بلکہ آ چکا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر فائزہ، آپ کیسی ہیں؟ یوشا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ مرحبی ساتھ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھی، البتہ نینا غائب تھی۔ ہیلو، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ فائزہ نزاکت سے بال جھٹکتی ہوئی بولی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، ویسے آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ یوشا حد درجہ معصومیت سے بولی تھی۔ او شکریہ، میں تو بچپن سے ہی بہت پیاری ہوں، پیاری تو تم بھی ہو۔ فائزہ پہلے نخرے سے اور پھر حسد سے بولی تھی۔ فائزہ کا تعلق ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے آگے کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، حسد کے مارے لوگ، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھنے والے، اس بات سے ناواقف کہ اللہ نے سب کو خاص بنایا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کو دیکھ کر لگتا بھی ہے۔ آرٹیفیشل بیوٹی میک اپ کی دکان۔ یوشا زبردستی مسکرائی تھی۔ اس سے باتیں کرتی فائزہ کو نہیں پتا تھا کہ مرحا کو چھیڑ کر کس سے پنگا لیا ہے۔ پیچھے سے نینا اس کے بیگ میں اٹکا ہوا فون اچک چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہیو اے گڈ ڈے۔ نینا کا سگنل ملتے ہی وہ دونوں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ فائزہ بھی کاندھے اچکا کے چلی گئی۔ شایان اپنے روم میں بیٹھا آج کے تمام کیس کی ڈیٹیلز چیک کر رہا تھا جب میسج کی ٹون بجی تھی۔ میسج دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں شدید غصہ آیا تھا۔ انٹرکام بجا کے پیون کو بلایا اور ڈاکٹر فائزہ کو بلانے کا کہا تھا۔ کچھ منٹ بعد فائزہ کی چہکتی ہوئی آواز آئی تھی۔ یس ڈاکٹر شایان، آپ نے بلایا؟ جی آئیں۔ شایان ضبط سے بولا تھا۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر فائزہ؟ شایان نے فون سامنے کیا جہاں فائزہ کے نمبر سے ایک میسج آیا تھا۔ کیا ہے؟ فائزہ حیران ہوئی۔ فائزہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میسج کیسے آیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کا میسج بھیجنے کی؟ یہ ہماری ورک پلیس ہے، یہاں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ شایان چبا کے بولا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ فائزہ کو سمجھ نہ آیا، اس نے تو کوئی میسج بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھیں، یہ میسج آپ کے ہی نمبر سے آیا ہوا ہے۔ شایان نے فون اس کو دیا تھا۔ فائزہ کی میسج دیکھ کر آنکھیں کھل گئی تھیں، جہاں لکھا تھا، آپ مجھے بہت پسند ہیں
اور मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वैसे लिखा तो सच ही था, लेकिन फायजा ने नहीं लिखा था। वो तो इसे हॉस्पिटल में आई ही शयान की वजह से थी। शयान की यूनी फेलो थी, लेकिन शयान तो हमेशा से लड़कियों से दूर भागने वाला। फायजा ने बहुत कोशिश की थी इसकी तवज्जो हासिल करने की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। अब फिर कुछ सालों बाद हॉस्पिटल चली आई थी। काम करने में कोई इंटरेस्ट ना था, बस शयान के नजदीक रहना था। लेकिन ये मैंने नहीं किया है, फायजा परेशानी से बोली। आपके नंबर से मैसेज आया है और आप कह रही हैं कि आपने नहीं किया, तो क्या किसी फरिश्ते ने कर दिया है? शयान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसको बिल्कुल भी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी जो दूसरों को खुद की तरफ माइल करें, और वैसे भी ये इसके काम की जगह थी। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात हो, ये शयान को कतई बर्दाश्त न था। जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया। जरूर डॉक्टर मरहा ने ही किया होगा, वही सुबह मेरे साथ थी। फायजा अपनी सफाई में बोली थी। आप सोचकर बोले, आप किस पर इल्जाम लगा रही हैं? इसके लिए आपको हॉस्पिटल से निकाला भी जा सकता है। शयान को मरहा का नाम लेने पर और भी गुस्सा आया था। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आप मरहा को बुला के पूछ लें। फायजा को अपना आप बचाना था। कुछ देर बाद मरहा आई तो शयान बोला था, डॉक्टर मरहा, मैं जो पूछूंगा आपने सच सच जवाब देना है। जी। मरहा हैरान हुई, इसको क्यों बुलाया है? क्या आपने डॉक्टर फायजा के नंबर से मुझे मैसेज किया है? शयान चबाकर बोला था, हैं? मैं क्यों आपको मैसेज करूंगी, और वो भी डॉक्टर फायजा के सेल से? क्या हो गया है सर, मेरे पास अपना फोन भी है। मरहा घूरती हुई बोली थी, डॉक्टर मरहा, सुबह आप मेरे साथ थी, आपने किया होगा, आप मान क्यों नहीं लेती हैं? फायजा तंग आकर बोली थी, अरे भाई, जब मैंने कोई मैसेज किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं? मरहा भी इसी के अंदाज में बोली, वैसे बात तो ठीक है, मैसेज मरहा ने नहीं नैना ने किया था। आप ही मेरे साथ थी सुबह, आप नहीं किया होगा। फायजा जोर से बोली थी, मैं जब कह रही हूँ कि नहीं किया मैसेज, तो क्यों पीछे पड़ गई हैं आप? मरहा भी वैसे ही चिल्लाई थी, स्टॉप इट, ये हॉस्पिटल है क्या समझा हुआ है आपने? शयान का जब्त टूटा था। दोनों ने एक नजर शयान को देखा, फिर शुरू हो गई, जस्ट शट अप। क्या हो गया है आप दोनों को? ये हॉस्पिटल है, कोई मछली बाजार नहीं है। जाएं आप दोनों यहाँ से। अब नेक्स्ट ऐसी कोई हरकत हुई तो अच्छा नहीं होगा। शयान का पारा हाई हो गया था। दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और पैर पटकती हुई चली गई थी। उफ, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। शयान सर हाथों में थाम कर बोला था। बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखा था। फायजा इसकी तरफ देखकर बोली, शयान से दूर रहो तुम, वो सिर्फ मेरा है। हाँ तो मैंने क्या कहा है, मेरी तरफ से खरीद लो तुम इनको, लेकिन मुझसे 10 फीट की दूरी पर रहना। आज तो कम की है, अगली दफा इस हॉस्पिटल से ही बाहर होगी। मरहा चबा के बोली थी, लिसन यू। फायजा ने बोलना चाहा, यू लिसन, मुझसे दूर रहना और मेरे काम में टांग मत अड़ाना, वरना टांग ही तोड़ दूंगी। मरहा ने उंगली उठा के वॉर्न किया था। फायजा पैर पटकती हुई वहां से चली गई थी। हम्म, आई बड़ी मुझसे पंगा लेने वाली, मरहा कहती हुई अपनी चुड़ैलों के पास चली गई थी। ड्यूटी तो वैसे ही खत्म हो गई थी। सीन चेंज। नजदीक आकर देख मेरे एहसास की शिद्दत, कितना धड़कता है ये दिल एक तेरे नाम से। योशा आज अपने काम में बिजी थी, अपनी ड्यूटी जल्दी खत्म कर रही थी, क्योंकि किसी से मिलने जाना था। मरहा की ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन इसको फिर शयान ने बुला लिया था एक केस के लिए। ऐसे में सिर्फ नैना अकेली थी, ड्यूटी भी खत्म हो गई थी और कोई काम भी नहीं था। डॉक्टर नैना, क्या हम बात कर सकते हैं? नैना चाय पीने किचन में जा रही थी जब पीछे से मुराद की आवाज आई थी, नहीं कर सकते। नैना ने मुड़ते हुए जवाब दिया था, क्यों नहीं कर सकते? मुराद घूर कर बोला था, क्योंकि मैं कह रही हूँ। नैना भी वैसे ही बोली, लेकिन मुझे बात करनी है। मुराद बज़िद हुआ। नैना बगैर जवाब दिए जाने लगी तो मुराद घूम कर इसके आगे आया। ये क्या बदतमीजी है? नैना गुस्से से बोली थी। सुन तो लो मेरी बात। मुराद ने इल्तिजा की। हाँ सुनाओ। नैना ने हाथ कोट की पॉकेट में डालते हुए एहसान किया था। मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। मुराद संजीदगी से बोला था। क्यों, तुम्हारे घर में जगह खत्म हो गई है क्या? नैना ने बात हवा में उड़ाई थी। तुम ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती, मुराद ने वार्न किया। मैं ऐसे भी उड़ा सकती हूँ और वैसे भी, क्या कर लोगे तुम? नैना आंखें छोटी करके बोली थी। बताऊं क्या कर लूंगा? मुराद कहता आगे कदम बढ़ाने लगा था। दूर रहकर बात करो वरना, नैना ने कदम पीछे लेते हुए धमकी दी।
वरना क्या? हाँ, मुराद ने चैलेंज किया था। मुराद के मुंह से जबरदस्ती चीख निकली थी। नैना अपनी हील जोरदार तरीके से मुराद के पांव पे मार चुकी थी। मुझसे दूर रहो, ठरकी इंसान। इस बार पांव पे मारा है, अगली दफा ऐसा किया तो सर तोड़ दूंगी। नैना ने उंगली उठा के वार्न किया और चली गई। बेचारा मुराद। सीन चेंज। तेरे इश्क की है जुस्तजू, तेरी कुर्बतों का सवाल है। मेरी सांस है जो रवा रवा, तेरी चाहतों का कमाल है। सर, आपसे कोई मैडम मिलने आई हैं। पियोन ने शहराम को बताया, जो फाइल पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। मुझसे मिलने मैडम? अच्छा, भेज दो। शहराम हैरान हुआ। आज तक तो कोई मैडम मिलने नहीं आई, ये कौन है? शहराम सर झटक कर काम करने लगा। जानी पहचानी खुशबू नथुनों से टकराई तो खुशगवार हैरत से सर उठाया। इतनी हसीन मैडम तो ख्वाब में भी नहीं सोची थी। जहे नसीब, आज सूरज कहाँ से निकला है? शहराम शहरजदा सी मुस्कुराहट से बोला था। अस्सलाम वालेकुम। यूशा मुस्कुरा के बोली थी। वालेकुम अस्सलाम। आए, तशरीफ रखें। शहराम ने अपनी कुर्सी पेश की। लेकिन ये तो आपकी है। यूशा मद्धन सी बोली थी। अरे, हम भी तो आपके ही हैं। शहराम दिल खोल के मुस्कुराया था। शुक्रिया। यूशा मुस्कुरा के बोली। वल्लाह, मारने का इरादा है क्या आज? शहराम तो सातवें आसमान पे था। बकवास नहीं करें। यूशा ने आंखें निकाली थी। ओके जी, जो जनाब का हुक्म है, बंदा हाजिर खिदमत है। शहराम दिल पे हाथ रख कर बोला तो यूशा खिलखिलाई थी। शहराम तो देखता ही रह गया था कि कितने वक्त बाद ये मंजर देखना नसीब हुआ है। ज्यादा नहीं, बस आपका कुछ वक्त चाहिए। यूशा मुस्कुरा के बोली। अरे, आप बस हुक्म करें, वक्त ही वक्त है आपके लिए। शहराम को तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दिल का करार खुद मिलने आया है। मेरा और उसका साथ बहारों में खुशबुओं के लम्स जैसा। नहीं होते बर्दाश्त तुम पर दो नुक्ते, तभी तो कहता हूं हम हो जाएं। शहराम इसे लेकर साहिल समंदर पर आया। पूरा रास्ता दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। शहराम तो आज इंतहा से ज्यादा खुश था, जबकि यूशा अपने दिल की बात समझने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी खड़ी करके जल्दी से बाहर निकला और यूशा की साइड का दरवाजा खोला। यूशा मुस्कुराती हुई बाहर निकली थी। शहराम ने हाथ आगे किया तो झिझकते हुए अपना हाथ इसे थमा दिया। शहराम शर्शारी की कैफियत में आगे बढ़ा। शहराम इसे लेके एक पुरसुकून जगह पे आ गया, जहां इक्का दिक्का लोग थे। दोनों नीचे रेत पर ही बैठ गए। मुझे आपसे बात करनी है। यूशा खुद को पुरसुकून करती हुई बोली, वरना दिल की धड़कन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जी जी, मैं हमतन गोश हूँ। शहराम दिल नशीन अंदाज में बोला था। प्लीज बी सीरियस। यूशा नजरें झुका के बोली थी। आपके मामले में मैं हमेशा ही सीरियस होता हूँ। खैर, आप बताएं, क्या बात करनी है आपने? शहरान संजीदा सा बोला, या शायद यूशा को संजीदा लगा था। मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यूशा नर्वस सी बोली। पता नहीं क्यों, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं मान टूट ना जाए। बोले, मैं सुन रहा हूँ। शहराम वैसे ही संजीदा सा बोला था। आप कभी भी मुझे बगैर बताए किसी मिशन के लिए नहीं जाएंगे। आपको रोज जल्दी घर आना पड़ेगा और आप मुझ पे शाउट भी नहीं करेंगे। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो आपको खुद बनाना होगा। और यूशा कुछ और बोलने लगी थी कि शहराम बोला, हा हा, इतनी मासूम सी शर्तें, इन पर तो मेरी जान भी कुर्बान। शहराम खुले दिल से मुस्कुराया। आप मजाक उड़ा रहे हैं। यूशा मुंह फुला के बोली थी। पता नहीं क्यों शहराम के सामने बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। शायद नाज उठवाना चाह रही थी। और वो तो वैसे ही अपनी यूश का दीवाना था। बिल्कुल नहीं प्यारी लड़की, भला मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूँ? शहराम इसका चेहरा हाथों में लेके बोला था। यूशा नजरें झुका गई। आज तो ब्लैक बेल्ट यूशा पता नहीं कहाँ थी। ये तो कोई छुई मुई सी लड़की थी। बस या और भी शर्तें हैं आपकी? शहराम ने इसकी आंखों में देखा, जहां कोई खौफ हिलकोरे ले रहा था। नहीं, बस आप प्लीज वादा करें, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, चाहे जैसे भी हालात हों। आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, वादा करें मुझसे। यूशा ने कहते हुए हाथ इसके सामने फैलाया था, जिसे शहराम ने बगैर किसी देर के फोरा से पकड़ लिया था। अब मैं कुछ बोलूं? शहराम ने इजाजत चाही थी। यूशा ने हाँ में सर हिला दिया। मैं शहराम खानजादा, अपने पूरे होश व हवास में
यूशे शहराम खानजादा से वादा करता हूँ कि मैं आपकी हर शर्त मानूंगा और हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा, आपको इज्जत और मोहब्बत दूंगा। मेरी मोहब्बत को कभी जवाल नहीं होगा, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। जिस दिन मैं कोई वादा पूरा ना कर सका, आप बिलाशुबा ब्लैक बेल्ट हैं, मुझ पर ट्राई कर सकती हैं। शहराम कहता हुआ आखिर में शरारत से बोला था। शहराम के अंदाज पर यूशा हंस पड़ी थी। हमेशा हंसती रहा करो मेरी चंदा, आप ऐसे ही प्यारी लगती हो। शहराम इसका हाथ थाम कर प्यार से बोला, आप साथ रहेंगे तो मैं हंसती रहूंगी। यूशा भी इसके अंदाज में बोली थी, वैसे एक बात तो बताएं, आप आज ये कर्म कैसे किया है मुझ मासूम पे? पिछले 12 सालों से मैं आपके सामने हूँ और 6 साल से आपको मना रहा हूँ, तब तो आप मानी नहीं थी। शहराम इसको आंखों से दिल में उतारते हुए बोला था, मैं कभी भी आपसे बदगुमान नहीं थी, ना ही नफरत करती थी। बस आपने मेरे कहने के बावजूद फोर्स ज्वाइन कर ली, इसीलिए मुझे गुस्सा और दुख था। एक डर भी था कि कहीं आप भी बाकी पुलिस वालों जैसे ना हो जाएं, और मैं अपना डर, अपने दिल की बात किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, बस इसीलिए। और अब भी मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। यूशी नजरें झुका के बोली थी। शहराम को इस पे बेसाख्ता प्यार आया। इसी ट्रांस में इसने अपने लब यूशे के हाथ पे रखे। यूशे कांप गई थी। इसके लम्स पे हाथ पीछे करना चाहा तो गिरफ्त और मजबूत हो गई। आहा, ये हाथ अब नहीं छूटेगा। जब आप राजी नहीं थी तब मैंने नहीं छोड़ा, और अब तो आप अपनी मर्जी से मेरे पास आई हैं। शहराम नरमी से बोला, वैसे आपकी बोलती क्यों बंद है? आप तो इतना लड़ती थी मुझसे, और इस दिन तो आपने मुझे मारा भी था। शहराम ने कहते हुए शिकवा किया था। हाँ तो आपको किसने कहा था कि चोरों की तरह मेरे रूम में आओ? यूशे नाक चढ़ा के बोली थी। तो सीधी तरह तो आप शक्ल नहीं दिखाती थी, फिर मुझे कुछ तो करना था ना। वैसे भी मैं कौन सा पहली दफा आया था? शहराम मसनूई नाराजगी से बोला था। हाँ तो मैं नाराज थी आपसे, यूशा ने याद कराया था। नाराज थी तो मनाने का मौका भी नहीं देती थी। पता भी है आपको मैंने कितना मिस किया था। शहराम मुंह बना के बोला था। हाँ तो गलती भी तो आपकी थी, यूशे ने मलबा इसी पे डाला था। तो आपने कौन सा मेरी बात सुनी थी? शहराम ने फिर से शिकवा किया था। अच्छा, अब चलते हैं, वो दोनों मेरा वेट कर रही होंगी। यूशा ने उठना चाहा था। जरा सा बैठ, अभी और बात कर मुझसे। हसीन शख्स, मेरा दिल नहीं भरा तुझसे। शहराम प्यार से बोला। यूशा मुस्कुराई। अच्छा हाथ तो छोड़ दें, खो ना जाऊं कहीं जमाने में, अपने हाथ मेरे हाथ में रहने दे। शहराम फिर से बोला था। उफ, आप कैसे इतनी शायरी कर लेते हैं? यूशा हसरत से बोली। कोई मेरी तरह शेर कह ही नहीं सकता, किसी के पास तुम सा मौजू ही नहीं जाना। शहराम फिर मुस्कुरा के बोला था। शहराम बस करें, अब चलते हैं, देखिए अंधेरा हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। यूशी बेचारगी से बोली थी। भूख की तो वो वैसे भी कच्ची थी। अच्छा जी चले, आज आपका ये खादिम आपको जबरदस्त सा डिनर कराएगा और अच्छी सी शॉपिंग भी। शहराम ने कहते साथ ही आगे हाथ बढ़ाया था। यूशी ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। शॉपिंग किस खुशी में जी? आप मुझे मिल गई हैं, ये क्या कम खुशी की बात है? शहराम के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। अच्छा, मैं क्या इतनी अहम हूं आपके लिए? यूशी ने मुस्कुरा के पूछा। हाँ बिल्कुल, जैसे सांस वैसे आप। शहराम लहजे में प्यार समोए बोला था। अच्छा। यूशी का अच्छा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। शहराम ने यूशे को इसकी पसंद का डिनर कराया, फिर बहुत सारी शॉपिंग कराई। दोनों ने एक खूबसूरत शाम गुजारी। इसके बाद शहराम ने लेट नाइट यूशा को फ्लैट पर छोड़ा था, लेकिन दिल इसका अब भी नहीं कर रहा था इसको वापस छोड़ के आने का। सीन चेंज। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इनकी शादी कब हुई। इनकी शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ था। जब आरफा यूशा की मम्मा को पता चला कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, तो इन्होंने 9 साला यूशा का निकाह अपने बेस्ट फ्रेंड सादिया के बेटे से करा दिया था। यूशा के नाना तो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जिद पर मान गए। इस वक्त शहराम 15 साल का था और मैट्रिक का स्टूडेंट भी था। दोनों ही एक दूसरे को जानते थे और शुरू से अपना रिश्ता भी पहचानते थे। शहराम ने तो जब छोटी सी ग्रीन आंखों वाली यूशा को देखा तो इसी वक्त कह दिया था कि ये मेरी डोल है। फिर शहराम तो यूशा का दीवाना था,
لیکن جب CSS کے پاس شہرام نے فورس جوائن کرنا چاہی تو یوشا نے اس کو بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ یوشا کو یہی ڈر تھا کہ وہ بھی اس کے بابا کی طرح ظالم بن جائے گا۔ اسی وجہ سے یوشا پچھلے 6 سال سے ناراض تھی، لیکن وہ بھی شہرام تھا، پیچھے نہ ہٹا، اپنی یوش کو نہ چھوڑا اور آخرکار اس کو یوش مل ہی گئی۔ سین چینج۔ ڈنر کے بعد سب لوگ ہال میں بیٹھے چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایسے میں مسز ملک نے شایان کو مخاطب کیا۔ شایان، کیا سوچا آپ نے شادی کے بارے میں؟ موم، میں نے کیا سوچنا ہے؟ ویسے بھی میں کون سا ابھی شادی کر رہا ہوں؟ شایان نے بچنے کی پوری کوشش کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسی سال آپ کی شادی ہونی ہے، آپ نے ابھی تک لڑکی کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی کہ کیسی لڑکی چاہیے آپ کو۔ مسز ملک نے آڑے ہاتھوں لیا اسے۔ شایان نے مدد کے لیے فاروق صاحب کی طرف دیکھا تھا تو وہ ایسے جہانگیر صاحب سے باتوں میں مصروف تھے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ موم، میں نے کہا تھا میں آپ کی پسند سے شادی کروں گا، جو آپ کی پسند ہوگی مجھے قبول ہوگی۔ شایان نے سر جھکا کے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہارے ڈیڈ کے ایک دوست کی بیٹی پسند ہے، ہم کل ہی بات کریں گے۔ مسز ملک تو تیار ہی بیٹھی تھی۔ شایان کو ایک دم سے سیاہ اسکارف کے حالے میں چاند سا چہرہ یاد آیا، لیکن پھر سر جھٹک کے بولا تھا، جیسی آپ کی مرضی موم۔ دیکھ لیں مما، چچی کو ایک آپ کو اپنا بیٹا نظر نہیں آتا ہے، اس کی بھی عمر ہو گئی ہے۔ مراد کو اپنی ہی پڑی تھی۔ سب اپنی باتیں چھوڑ کے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ سب کے ایسے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لڑکی دے گا کون؟ مراد کی ماں انم بیگم پیار سے بولی تھی۔ شایان کی ہنسی نکل گئی تھی۔ مراد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، اب میں آپ کے پاس تب آؤں گا جب لڑکی مان جائے گی۔ مراد ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گیا تھا۔ سب بڑے تھے، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کہکا لگا کے ہنس پڑے تھے۔ مراد کی شکل دیکھنے لائق تھی، جس کا دل کرتا تھا مذاق بنا کے چلا جاتا تھا۔ سین چینج۔ شہرام خوشی سے پھولا ہوا گھر پہنچا تھا تو سامنے ہی سعدیہ بیگم اسے نظر آئی تھی۔ شہرام نے جاتے ہی ان کو بازوؤں میں اٹھا کے گھما ڈالا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شہرام آپ کو؟ میں گر جاؤں گی، بدماش، نیچے اتارے مجھے۔ سعدیہ بیگم دل پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ موم، آج میں بہت خوش ہوں۔ شہرام نے ان کو صوفے پر بیٹھایا تھا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ پتہ ہے، یوشا مان گئی ہے، آج مجھ سے ملنے بھی آئی تھی وہ۔ شہرام بچوں جیسی خوشی لیے بولا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سعدیہ بیگم نے نظر اتاری۔ آمین۔ شہرام دل سے بولا تھا۔ اچھا، مجھے کب میری بہو سے ملا رہے ہو؟ جلد ہی ملا دوں گا، بس آپ اپنی بہو کو مستقل گھر لانے کی تیاری کریں۔ شہرام مسکرا کے بولا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، زیادہ جلد باز نہ ہو، جاؤ اب جا کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سعدیہ بیگم اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ آج نیند کس کمبخت کو آنی ہے؟ شہرام بڑبڑاتا ہوا روم کی طرف چل پڑا۔ سین چینج۔ اگلا دن بھی کراچی پہ کافی خوشگوار تھا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اس وقت تینوں ریسٹ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ کس کو کیسا لائف پارٹنر پسند ہے یا کون کیسا پارٹنر چاہتا ہے۔ یوشا تو سکون سے بیٹھی تھی کیونکہ اس کو پارٹنر مل چکا تھا۔ نینا نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو میری شرطیں پوری کرے گا وہی ہوگا۔ اب مرحا کی باری تھی۔ بتانا گلابو، کیسا لڑکا پسند ہے تجھے؟ نینا بے چینی سے بولی تھی۔ میں پتا ہے کیا چاہتی ہوں، کوئی ایسا ہو جس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں، مجھے اس کی روح تک رسائی حاصل ہو، جس کے لیے صرف میں خاص ہوں، جس کی محبت اور چاہت کا دائرہ مجھ سے شروع ہو کے مجھ تک ہی ختم ہو جائے۔ میرے لیے اس کے علاوہ زندگی میں کوئی نہ ہو، وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری انسان ہو، وہ میری دنیا ہو اور میں اس کا کل جہاں۔ کیونکہ مجھ سے اپنی من پسند چیز اور من پسند انسان تقسیم نہیں کیے جاتے۔ میں ہر جذبہ مخلص رکھتی ہوں اور ہر تعلق مخلص ہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جو میری زندگی میں آئے اس کے لیے میں سب کچھ ہوں۔ مرحا کسی اور جہاں میں ہی پہنچی ہوئی تھی۔ واللہ یار، ایموشنل ہی کر دیا، نینا گالوں پہ ہاتھ ٹکا کے بولی تھی۔ دروازے میں کھڑے انسان کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ شایان مرحا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کافی دیر پہلے فائل دینے کا کہا تھا، لیکن جب انتظار طویل ہوا تو خود ہی اٹھ کے آ گیا تھا، اور یہاں آ کے مرحا کی باتیں سنی تو میسمرائز ہو گیا۔ شایان کو اس کی سوچ پسند آئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے واپس چلا گیا تھا اور وہ تینوں اپنی باتوں میں بزی ہو چکی تھیں۔
تو क्या जाने एक खड़ूस सा लड़का तेरे स्कार्फ पे दिल हार बैठा है। सीन चेंज। अच्छे नहीं हैं आज तेवर मौसम के, खुदा खैर करे आशिक मिजाज लोगों की। आज सुबह से कराची का मौसम काफी खुशगवार था। यूं लगता था किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। आसमान पे सुरमई बादलों ने बसेरा किया हुआ था। हॉस्पिटल के स्टाफ रूम के दोनों खिड़कियां खुली हुई थीं और वो तीनों अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सिर्फ खिड़की से ही मौसम देख के दिल बहला रही थीं। फिलहाल इनको बाहर जाने की इजाजत ना मिली थी क्योंकि किसी भी वक्त मीटिंग का बुलावा आ सकता था। यार क्या जबरदस्त मौसम है, पर जालिम हॉस्पिटल वाले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। नैना ने दुहाई दी। हाँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। मरहा भी गुमसुम सी बोली थी। क्या हो गया है तुम दोनों को? मौसम कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा, वापसी पे जितना मर्जी इंजॉय कर लेना। यूशा इनकी दुहाइयां सुनकर बेजार हो रही थी। हाय गाइस, व्हाट्सअप? मुराद डोर नॉक करके अंदर आया था। कुछ नहीं, बस मौसम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मरहा सादगी से बोली थी। मौसम एंजॉय करना है तो यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर चलें। मुराद ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। रुको मुराद, बाहर मत जाओ। यूशा संजीदगी से बोली। क्यों, क्या हुआ? मुराद हैरानगी से पलटा था। वो मुझे इस मौसम को और तुम्हें देखकर कुछ याद आ गया है। यूशा की संजीदगी बरकरार थी। क्या याद आ गया है? मुराद परेशान हुआ। यूशा कमाल मासूमियत से बोली थी। क्या मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है, एक जादू सा छाया है। तो बाहर मत निकलना वरना लोग कहेंगे बरसात हुई नहीं और मेंढक निकल के आया है। हा हा हा। नैना और मरहा को तो हंसी का दौरा ही पड़ गया था और मुराद होंक बना इसकी शक्ल देख रहा था। जब समझ आया तो आगे बढ़ा। यूशा की बच्ची, मैं तुमको मेंढक लगता हूँ? यूशा ने कांधे उचका दिए जैसे कह रही हो कि कोई शक। यू मुराद कुछ कहने को आगे ही बढ़ा था कि नैना इसके आगे आ गई थी। खबरदार जो मेरी दोस्त को एक लफ्ज भी कहा तो। नैना घूर के बोली थी। क्यों ना कहूं, इसने भी कहा है ना, मैं भी कहूंगा, तुम क्या कर लोगी? मुराद भी चिढ़ के बोला था। कह के तो दिखाओ, मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं। नैना ने दांत पीस के बोला था। वो दोनों मानी खेज मुस्कुराहट लिए इन दोनों को ही देख रही थी। अच्छा, कुछ नहीं कहता तुम्हारी दोस्त को, फिर तुम्हें कुछ कह लूं? मुराद शोका हुआ था। मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है कोई बकवास की तो। नैना को गुस्सा आया था। यार एक तो तुम धमकियां बहुत देती हो, मैं मासूम सा बंदा हूं, डर जाता हूँ। मुराद बेचारगी से बोला था। तुम और मासूम? क्यों मासूमों को बदनाम कर रहे हो? नैना सर झटक के बोली थी। ठरकी इंसान पीछे ही पड़ गया है और यूशा ने बिला वजह का भाई बना लिया है। प्लीज नैन, एक बार बात सुन लो मेरी। मुराद ने मासूम शक्ल बनाई थी। मेरा नाम नैना है, कान खोल कर सुन लो। दोबारा बिगाड़ा तो मैंने दांत तोड़ देने हैं तुम्हारे। नैना ने उंगली उठा के वार्निंग दी थी। लेकिन तुम मेरी नैन हो, मैं यही कहूंगा, तुम जो मर्जी कर लो। मुराद दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला था। भाड़ में जाओ तुम ठरकी लोफर आवारा इंसान। नैना इसको नया लकब देती हुई पैर पटक के चली गई थी। यूशा और मरहा का मुराद की शक्ल देखकर कहका निकल गया। यार कैसी बहनें हो तुम दोनों, मेरी मदद नहीं कर सकती हो क्या? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। प्लीज प्यारी बहनों, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। मुराद ने कहते मिन्नत की। इसके अलावा वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। पता नहीं नैना को क्या बैर था इससे, बात ही नहीं सुन रही थी। अच्छा, किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? यूशा एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी। यार प्लीज कुछ भी करके इसको मना लो कि वो मेरी बात सुन ले। मुराद बेचारगी से बोला था। हाँ, बात तो हम करवा देंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि वो मान ही जाएगी? यूशा अब संजीदा हुई थी। क्या मतलब है, वो क्यों नहीं मानेगी? मैं प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ इससे। मुराद ने वजाहत चाही थी। वो तो हमें पता है, लेकिन इसका कहना है कि जो इसकी शर्तें पूरी करेगा वो इसी से शादी करेगी। मरहा ने मालूमात में इजाफा किया। क्या मतलब, कैसी शर्तें? मुराद हैरान हुआ था। अब ये तो हमें नहीं पता। मरहा ने कांधे उचका दिए। फिर भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, आगे तुम्हारा अल्लाह मालिक है। यूशा ने एहसान अजीम किया था। शुक्रिया। मुराद ममनून हुआ था। ठीक है, तुम ये रखो, हम चलते हैं। यूशा ने एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया था। ये क्या है? मुराद हैरान हुआ। ये दिमाग के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। नैना की शर्तें सुनने के बाद तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। वो दोनों शरारत से कहती हुई गायब हो गई थी। मुराद सोचता ही रह गया था, ऐसी भी कौन सी शर्तें हो सकती हैं। सीन चेंज। रात के इस पहर खामोशी का राज था।
सर्दी खत्म होने को थी, आसमान पे चांद सितारों के बीच जगमग कर रहा था। सारे फ्लैट में अंधेरा छाया हुआ था। नैना और मरहा सो गई थी। नैना तो वैसे ही नींद की शदाई थी, मरहा भी जल्दी सोने की आदी थी। यूशा भी सोने ही लगी थी, लेकिन फिर नजर हॉस्पिटल की फाइल पर पड़ी थी। वो 2 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी, सुबह जमा भी करानी थी, तो सोचा पूरी कर ले। खिड़की से हवा आ रही थी, लंबे बाल खुले हुए थे और हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। यूशा फाइल पर झुकी काफी मसरूफ थी। आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं, क्या लगाती हैं? पीछे से किसी की आवाज आई। यूशा डर के उछली थी। तोबा है शहराम, डरा दिया मुझे। और आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? यूशा खफगी से बोली थी। मैं तो अपना सुकून लेने आया था। शहराम प्यार से बोलता हुआ बेड पर नीम दराज हो गया था। बिजी हूं मैं अभी, आपसे कल मिल लूंगी। यूशा फाइल पर दोबारा से झुकी थी। ठीक है जी, आप अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। शहराम इसको देखता हुआ बोला। कौन सा काम आपका? यूशा ने इसकी तरफ देखा था। बड़ी बेलगाम सी हो गई हैं मेरी आंखें, तेरे दीदार के मुसलसल बहाने ढूंढती हैं। आपका दीदार करना, शहराम ने कहते हुए आंख दबाई थी। यूशा सटपटा कर रुख मोड़ गई थी। शहराम हल्का सा हंसा था। झुमके का मुकद्दर है काबिले रश्क बहुत, तेरे गाल के पहलू में बहक रहा है। शहराम ने कहते इसके कान का झुमका छेड़ा था। यूशा का दिल धड़का। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही? शहराम इसके खामोश रहने पर बोला था। क्या कहूं मैं, आप तो अपनी ही करते हैं और यूं चोरों की तरह क्यों आते हैं? हिम्मत है तो सबके सामने आया करें। यूशा ने घूरा था। बस क्या करूं, आपको देखे बगैर नींद नहीं आती, तो बस चला आया। और मैं चोरों की तरह नहीं आया, बस रात को सब सो जाते हैं तो मैंने दरवाजा बजा के डिस्टर्ब नहीं किया था। शहराम इसके बालों को हाथ पे लपेटता हुआ बोला। अच्छा, और जो मुझे डिस्टर्ब किया इसका क्या? यूशा ने फाइल साइड पर की थी। आपको डिस्टर्ब करने का तो लाइसेंस है मेरे पास। शहराम मुस्कुराया। अब क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? इतने टाइम बाद मानी हैं आप? बंदा कोई प्यार मोहब्बत की बातें ही कर लेता है। शहराम ने मुंह बनाया था। आप है ना प्यार की बातें करने के लिए, फिर मैं क्यों बोलूं? यूशा मुस्कुरा के बोली थी। अच्छा आप बताएं, कब मैं बारात लेके आऊं? शहराम ने अपने मतलब की बात की थी। चले उठें आप और जाएं यहाँ से, बहुत रात हो गई है। यूशा बेड से उठ के खड़ी हुई थी। पर क्यों? आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। शहराम हैरान हुआ। मैं क्या जवाब दूं? आप नाना से खुद बात कर लें। यूशा की नजरें झुक गई थी। अच्छा ठीक है, फिर तैयार हो जाएं, मैं जल्दी बात करूंगा। शहराम भी उठा। ठीक है, बस अब आप जाएं। यूशा ने खिड़की की तरफ धकेला था। आप अच्छा नहीं कर रही हैं, बंदा कोई चाय पानी ही पूछ लेता है। शहराम का जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। आप कौन सा पहली दफा आए हैं जो मैं चाय का पूछूं? यूशा ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा छोड़ें ये सब, कल आप 4 बजे तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा आपको। शहराम असल बात की तरफ आया। कहाँ जाना है? यूशा मुस्कुरा के बोली थी। मोम से और अपनी देवरानी से मिलने। शहराम मुस्कुरा के करीब आया था। मैं आपके सीनियर से बात करूंगा, आप बस तैयार रहना। अच्छा ठीक है, अब जाएं। यूशा 2 कदम पीछे होती हुई बोली थी। और अगर ना जाऊं तो? शहराम ने आईब्रो उचकाया था। तो यूशा और पीछे हुई, लेकिन पीछे दीवार थी। शहराम बिल्कुल इसके नजदीक खड़ा हुआ था। यूशा की नजरें उठने से इनकारी थी, गाल लाल हो गए थे। यूशा ने साइड से निकलने की कोशिश की तो शहराम ने दोनों हाथ पकड़ के दीवार से लगा दिए। यूशा को पसीना आने लगा। प्लीज शहराम, स्पेस बिटवीन योर फिंगर्स आर सपोज टू बी फिल्ड विद माइन। शहराम ने उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाते हुए कान में सरगोशी की थी। यूशा ने आंखें बंद कर ली। शहराम मुस्कुराया। अपने होठों का लम्स माथे पर छोड़ता हुआ वहां से गायब हो गया। यूशा अपनी धड़कनें संभालती रह गई थी। उफ, ये इंसान। सीन चेंज। मलिक विला में आज फिर से रौनक लगी हुई थी। मौजू था शयान के लिए देखी जाने वाली लड़की। सबको लड़की पसंद आई थी। मिसेस मलिक तो तारीफ ही किए जा रही थी। जिनकी शादी की बात हो रही थी वो तो किसी और ही जहां में पहुंचे हुए थे। कोई भी बात सुनाई न दी। मिसेस मलिक ने लड़की का नाम भी बताया और काम भी, लेकिन वो बस हूं हाँ ही करता रहा। दिल व दिमाग तो किसी और में ही उलझा हुआ था। क्या होता जा रहा है मुझे? मैं क्यों इसको इतना सोच रहा हूँ? मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती तो वो क्यों बार बार मुझे याद आ रही है? अब तो मेरी शादी होने वाली है किसी और से। मुझे इसके बारे में सोचना ना चाहिए, लेकिन
मैं क्यों इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। आह, मिस गुलाबो, क्यों क्यों तुम मेरे दिल व दिमाग पर छाई हुई हो? क्योंकि तुम मोहब्बत करते हो इससे, दिल ने सरगोशी की। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग फोरा बोला था। ऐसा ही है, इसीलिए वो और इसकी बातें, इसकी सोच अच्छी लग रही हैं। ये मोहब्बत ही है। दिल फिर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मोहब्बत नहीं करता। शान बड़बड़ाया था। हाँ, क्या कहा भाई आपने? पास बैठा हुआ मुराद बोला था। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। शान चौंका था। बेटा जी, लड़की पसंद है आपको, हम हाँ कर दें? फारूक मलिक बोले थे। जी डैड, जैसी आपकी मर्जी। दिमाग की सुनता हुआ वो बोला। हालांकि लड़की देखी तक नहीं थी, न ही इसका नाम सुना था। कहते ही वो उठ के चला गया था। दिल दिमाग की इस जंग में वो झुंझला के रह गया था। सीन चेंज। शहराम पूरे टाइम पे यूशा को लेने हॉस्पिटल पहुंच गया। वो तीनों अपनी ड्यूटी से फ्री होके बैठे हुए थे जब शहराम नॉक करके अंदर आया। हाय ब्यूटीफुल लेडीज। शहराम ने हाथ हिलाया था। शहराम भाई, लेडीज सिर्फ आपकी वाली है, हम तो अभी कवारी लड़कियां हैं। मरहा नाक चढ़ा के बोली थी। ओके ओके, कैसी हैं आप दोनों? शहराम ने हार मान ली, कहीं गले ही न पड़ जाए। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं, आज यहाँ तशरीफ की खास वजह? नैना मशकूक हुई थी। माना कि आपकी बीवी मान गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपका दिल करेगा आप आ जाएंगे। हाँ तो मैं कौन सा किसी और से मिलने आता हूँ, अपनी जाती शरई बीवी से मिलने आता हूँ। वैसे आज मैं काम से आया हूँ। आपने इनको बताया नहीं? शहराम बोलता हुआ यूशा की तरफ मुड़ा था। जी जी, फिक्र ना करें, बता चुकी हैं हमें। वैसे भी हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। नैना गर्दन अकड़ा के बोली थी। हाँ जी, वो तो मुझे पता है, आप सब पेट की बहुत हल्की हैं। शहराम ने आग लगाई थी। शहराम, अब ये ज्यादा हो गया है। यूशा घूर के बोली थी। अच्छा, अब काम की बात सुने। शहराम बात की तरफ आया था। जी बोले। तीनों सीधी हुई। जैसा कि आप सब जानती हैं कि इब्तिशाम का निकाह हो रहा है 2 दिन बाद, लेकिन अब 15 दिन बाद इब्तिशाम को एक केस के सिलसिले में कुछ वक्त के लिए इस्लामाबाद जाना है, तो निकाह के साथ ही रुखसती भी होगी और आप सब ने कल ही आ जाना है। आपकी दोस्त को मैं आज ही लेने आया हूँ। शहराम ने बात पूरी करके तीनों की शक्लें देखी थीं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसको आज किस खुशी में लेके जा रहे हैं? मरहा बोली थी। क्योंकि इनकी सास का ऑर्डर है कि इनकी बहू कुछ दिन इनके साथ ही रहे। शहराम मुस्कुराया। सास से ज्यादा तो मुझे ये सास के बेटे का प्लान लग रहा है। नैना अभी तक मशकूक थी। यूशा चुप करके सिर्फ इनकी शक्लें देख ही रही थी। हाँ, हो भी सकता है। शहराम ने बालों में हाथ फेरा। हेलो गाइस। अरे शहराम भाई, आप कैसे हैं? मुराद ने एंट्री मारी थी। नैना के मुंह का डिजाइन ही बिगड़ गया था। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? शहराम ने आंखों से इशारा किया था। हाँ, बस गुजारा हो रहा है। मुराद की शक्ल उतर गई थी। अल्लाह रहम करे तुम्हारे हाल पे। शहराम ने दिल से दुआ दी थी। वैसे आप यहाँ खैरियत? मुराद ने इस्तफसार किया था। हाँ जी, खैरियत है। इन्होंने आपको बताया नहीं? शहराम ने यूशा की तरफ इशारा किया। क्या बताना था? मुराद को समझ न आई। यही कि मैं रिश्ते में आपका जीजू लगता हूँ। शहराम मुस्कुराया। हाँ हाँ, अच्छा कैसे? मुराद हंसा। अरे आपकी बहन का शोहर हूं भाई, शहराम ने बताया। अच्छा, मिसेज यूशा? मुराद ने पूछा था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें इनविटेशन तो मिल गया होगा ना? तुमने शादी में लाजमी आना है। शहराम खड़ा हुआ था। जी जी, मैं जरूर आऊंगा। मुराद ने जोर शोर से सर हिलाया था। चले। शहराम ने यूशा की तरफ देखा था। जी। यूशा भी उठी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप सबने आना लाजमी है। मुराद ने मुसाफा किया था। हम डिनर आपकी तरफ करेंगे। पीछे से नैना बोली थी। आप क्या एक दिन के लिए अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती? शहराम वापस मुड़ा। बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारी जान है। मरहा ने मुस्कुराहट दबाई थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शहराम ने गहरा सांस लिया था। सीन चेंज। मोम देखिए कौन आया है। शहराम घर आते ही जोर से बोला था। क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? इब्तिशाम भी रूम से बाहर आया। यूशा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? सादिया बेगम ने आते ही यूशा को गले लगाया था। वो भी माँ की आगोश मिलते ही तड़प उठी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मोम, मैंने आपको बहुत याद किया। यूशा आंसू बहाती हुई बोली थी। मैंने भी अपनी बेटी को बहुत याद किया। सादिया बेगम ने इसका माथा चूमा और अपने साथ लगाया। भाभी, मैं भी यही हूँ। इब्तिशाम ने बताना जरूरी समझा। कैसे हैं देवर जी? यूशा आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई थी और शहराम देखता ही रह गया था।
मैं ठीक, आप कैसे? इब्तिशाम मुस्कुरा के बोला। वो यूशा को बिल्कुल बहन की तरह मानता था। क्या मोम, आपने आते ही मेरी बीवी को रुला दिया है? शहराम ने इनकी तवज्जो अपनी तरफ की थी। ये तुम्हारी बीवी बाद में, मेरी बेटी पहले है। वाह, ये सही है, बेटी के आते ही मुझे भूल गई। भाभी, आप इसको छोड़ें, आप मेरी दुल्हन से मिले, इब्तिशाम ने याद दिलाया था। हाँ जरूर, इसीलिए तो मैं आई हूँ, यूशा कहती हुई सीधी हुई थी। जाओ नूरी, ताज को बुला लाओ, सादिया बेगम बोली थी। आजकल सारे घर वाले इसको ताज ही कहते थे। ताज पर बाहर आई तो यूशा को देखकर रुक गई थी और सवालिया नजरों से सबको देखा था। आओ ताज, इससे मिलो, ये है मेरी बेटी शहराम की बीवी और तुम्हारी जेठानी। सादिया बेगम ने तारुफ कराया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ताज पर कहती पास आई थी। यूशा उठ के गले मिली थी। तुम्हारी होने वाली बीवी तो बहुत ही प्यारी है इब्तिशाम। यूशा ने ताज का गाल चूमा था। वो झेप गई। अरे, मुझसे क्यों शर्मा रही हो? मैं कोई इब्तिशाम थोड़ी हूँ। यूशा हंसी थी। कुछ ही देर में ताज इससे घुल मिल गई थी और कल की मेहंदी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शहराम और इब्तिशाम भी काम पर लग गए थे। मगरिब के बाद ही वो दोनों भी टपक पड़ी थी। एक दिन भी अपने दोस्त से भी बर्दाश्त न हुई। आते ही वो ऐसे मिल रही थी ताज से जैसे बरसों से जानती हूँ इसे। इन तीनों के आने से घर में खूब रौनक गई थी। इन्होंने तो सर शाम ही ढोलक पीटनी शुरू कर दी थी। ताज को भी अच्छा खासा छेड़ रही थी और वो बेचारी बस मुस्कुरा ही सकती थी। सीन चेंज। अगले दिन सुबह से ही मेहंदी के फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर के गार्डन में भी मेहंदी के हिसाब से डेकोरेशन की जा रही थी। शहराम खुद वहां खड़ा होकर काम करा रहा था। आखिर इसके इकलौते भाई और दोस्त की शादी थी, वो कोई कमी नहीं चाहता था। दूसरी तरफ लड़कियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रात को खूब ढोलक बजाई, सुबह से फिर सारे कामों में लगी हुई थी। हालांकि ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए थे, लेकिन फिर भी बहुत काम था। आज तो बाजार के चक्कर भी लग रहे थे। अपनी शॉपिंग भी इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे की थी। दूसरी तरफ मुराद भी आने के लिए तैयार था। फारूक साहब को भी इनविटेशन दिया गया था, लेकिन वो नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्हें आउट ऑफ सिटी जाना था। जरूरी काम से तो इन्होंने शयान को बोला था जाने को, जिस पर शयान ने काफी बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुआ था और बिल आखिर मानना ही पड़ा था। अलबत्ता मुराद बहुत खुश था, जबकि शयान का मूड हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ था। यार, तुम दोनों मेरी बात सुन लो, फिर न कहना कि बताया नहीं। मरहा कब से इनकी मिन्नत कर रही थी, लेकिन इनके काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। हाँ बताओ, अब क्या बात है? यूशा काम छोड़ के आई तो नैना भी पीछे ही आ गई थी। बोलो भी, सुबह से तो चीख रही हो, अब बोलती बंद क्यों हो गई है? नैना चिढ़ गई थी। यार, वो रात को मोमानी की कॉल आई थी, मरहा सर झुका के बोली थी। हाँ तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? यूशा हैरान हुई। आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं किया था। नहीं यार, उफ, मैं अब कैसे बताऊं? मरहा झुंझलाई। यार, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा रिश्ता हो गया है। नैना तपी हुई थी। हाँ, सही कह रही हो, अभी हुआ नहीं है लेकिन आ गया है। मरहा जल्दी से बोली। व्हाट? वो दोनों जोर से चिल्लाई। क्या हो गया है, अब सारे मोहल्ले को बताओगी क्या? मरहा ने चुप कराया। लेकिन कब आया, कैसे आया और किसका आया? योशा ने सवालों की बौछार कर दी थी। कब कैसे का मुझे नहीं पता, लेकिन किसका आया है वो पता है। मरहा आराम से बोली। किसका? दोनों एक साथ बोली। खड़ूस का। मरहा ने बम फोड़ा था। क्या? दोनों की आंखें फट गई थी। और तूने हाँ कर दी क्या? नैना ने बेसब्री से पूछा। मैंने मोमानी को पहले ही हाँ कर दी थी, लड़का तो बाद में देखा। मरहा ने जैसे जुर्म का एतराफ किया था। लेकिन तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं, फिर? और इनकी तरफ से क्या जवाब आया? यूशा को फिक्र हुई थी। इन्होंने तो पहले ही हाँ कर दी थी। मरहा बोली। क्या तुम खुश रहोगी इनके साथ? यूशा ने पूछा। मम्मा बाबा ने फैसला किया है, कुछ सोचकर ही किया होगा, वैसे भी इनकी पसंद से ही करनी थी। मरहा बोली थी। चलो, अल्लाह बेहतर करे। अगर कोई बात हो तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हारे हर फैसले में साथ देंगे। नैना ने इसे साथ लगाया था। सीन चेंज। शाम होते ही सब तैयार हो गए। ताज को तैयार करने पार्लर वाली को घर बुला लिया गया था। मेहंदी से पहले निकाह होना था, इसीलिए सब काम जल्दी से किए जा रहे थे। बाहर लॉन की सजावट भी हो गई थी। ताज ने मल्टी कलर का लहंगा, साथ येलो कुर्ती और शॉकिंग पिंक दुपट्टा लिया हुआ था। फूलों की ज्वेलरी पहने बहुत प्यारी लग रही थी। इब्तिशाम भी मेहंदी रंग के कुर्ते शलवार में मामूल से हट के हैंडसम लग रहा था। शहराम भी नेवी ब्लू कुर्ता शलवार में बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी देर से यूशा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी।
बार वो इसके रूम का चक्कर भी लगा चुका था। कल के बाद से इसकी दोबारा बात ही नहीं हुई थी। अभी भी वो घर में इधर उधर देख रहा था जब सामने ताज के रूम से निकलती हुई दिखाई दी। शहराम फौरन से पहले इसके पास पहुंचा था। कहाँ बिजी है मोहतरमा, कल से आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। ससुराल वाले क्या मिल गए हैं, आप तो अपने घर वाले को ही भूल गई हैं। शहराम ने इसका खूबसूरत सरापा आंखों में समाते हुए पूछा था। जब घर वाले के घर आऊंगी तो पूछ लूंगी, फिलहाल मैं अपने भाई की शादी पे आई हूँ। यूशा भी मुस्कुरा के बोली थी। लाजवाब है मेरे महबूब की अदाएं, हर एक अदा पे मर जाने को जी चाहता है। शहराम दिल पे हाथ रख के बोला था। बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। इसने ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था जिसके दामन और बाजुओं पे व्हाइट नगों का काम किया हुआ था। सर पे ब्लू ही हिजाब सेट किया हुआ था। आज आप इतनी हसीन लग रही हैं कि दिल कर रहा है आपको सबसे छुपा के दूर ले जाऊं। शहराम कहता हुआ इसकी तरफ झुका था। यूशा ने इसके सीने पे हाथ रख के पीछे किया। थोड़ा सा फासला बरकरार रखें, यहाँ आप अकेले नहीं हैं। तो चलते हैं वहां जहां सिर्फ आप और हम हों। शहराम दिलकशी से बोला था। ये देखिए मम्मा ने मुझे कंगन दिया है, कैसा है। यूशा ने कंगन हिलाते हुए दिखाया था। सादिया बेगम ने अपनी सास के कंगन में से एक यूशा को और दूसरा ताज को दिया था। जब घुमाया इसने अपनी कलाई का कंगन, मेरी सारी दुनिया गर्दिश में आ गई। शहराम ने कहते इसके हाथ को लबों से छुआ था। यूशा शेर पे खिलखिलाई और शहराम देखता ही रह गया। आप इजाजत दें तो आज मैं भी रुखसती करवा लूं। शहराम ने इसे अपने करीब किया। बस बस, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। यूशा दूर हुई थी। कोई नहीं, आना तो आपने मेरे पास ही है, फिर देखेंगे आपको। शहराम इसके गाल को लबों से छूता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे यूशा का दिल हाथ में धड़कने लगा था और गाल दहक उठे थे। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.